Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with chemical reaction. Last class we started with combination reaction, displacement reaction, and decomposition. Decomposition, there were three categories: thermal decomposition. No. Thermal decomposition, then photolytic and electrochemical. Then we did what? Photochemical. Sorry. Then we did thermal dissociation. Thermal dissociation is what? Reversible. Thermal dissociation is what, beta? Reversible. Clear? Hai? Now today we are going to study double displacement, double decomposition. In double decomposition, beta, what should be there? We have to take what? This is very important thing. First, we are going to study precipitation. In precipitation, double decomposition, first of all, what will happen? Suppose this is A, this is B, this is C, and this is D. A is positive, B is negative. Then C is positive, and D is what? So now partners will change. So what will happen? A will go to, so what I'll get? AD. But while writing, we always write positive first. So A will come first and then D. Then what will happen in this case? But if I take B and C, so but I won't write BC. What? How I'll write? C. Because C is positive, na beta. So positive will always come first. Aradhya beta, till here any difficulty? Hello. Right? चलो आवाज आ रही है बेटा आराध्या हेलो हाँ सर very nice but we are going to do in this we are going to do two reaction one is precipitation and one is neutralization. Now, for neutralization, what is very important? Both the salt should be what? Soluble. Both the salt should be. If I write any and one so and then product beta one should be what? And the fourth one should be also what? Now, beta, you tell me. If I write any salt on the board, whether you will be able to tell me whether it is soluble or insoluble? No, no. When we are talking about solubility, we are talking in terms of what? Water. Solubility. So now, first thing we have to memorize that which salt will be soluble and which salt is insoluble. So what is the criteria? Both the salt should be what? Soluble. One should be, and the fourth one should be very. Abhi, I'm going to give you a trick. This is very important trick. We are going to study about solubility. Now, what we do in solubility, the first trick I am giving you. What is the first trick? All chloride are soluble. All chloride are except what? आगे होगा pub. What do you mean by आगे होगा pub? Ag से क्या आएगा बोलो? What you will get? होगा means Hg and pub means PP chloride. So only 3 chloride are soluble. इसके अलावा if apart from this any chloride if I write then it will be what beta? खत्म. Easy. So in life if I write any all chloride are soluble except आगे होगा pub means Ag का chloride, Hg chloride and PP chloride. ये 3 chloride क्या है? तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछेंगे. Name a chloride which is soluble in hot water. Name a chloride which is soluble in which one is that? PBCl. Chloride which is soluble in hot water is which one beta? PBCl. Any difficulty till here? Chalo beta. Then next. So if I write any other chloride, it is what beta? Soluble. Any other chloride, it will be what? Now we go to the next one. All sulfate are soluble. All sulfate are except what? Look, I have written the mnemonic. Punjab ka baag. Punjab means PB ka sulfate. Ka means calcium sulfate. Pa means barium sulfate. Ag means silver sulfate. Clear? All sulfate are soluble. Apart from this, 4, all are soluble. So now if I write any sulfate on the board, you'll be able to tell me whether it is soluble or insoluble. Clear? Aradhya beta, are you getting it? यस सर आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ दिया? तो इट इज गिवन इन माय नोट्स आल्सो आई शो. हाँ लिखा था ना बेटा. फिर oxide of sodium, potassium and ammonium are soluble. Oxide, hydroxide, can you see? Oxide, hydroxide, carbonate and sulfide of which salt are soluble? Potassium and apart from that, for others it will be what? For others it will be what? For others it will be what? Clear.
Okay, now tell me, is this sodium oxide soluble, sodium hydroxide soluble, sodium carbonate soluble, sodium sulfide soluble? But is this sodium, ammonium, or potassium का sulfate? No, na. Oxide, no, na. So all these are insoluble. All these are. Suppose beta, if I would have written for copper also, then it would have been what? Insoluble. Are you getting it? Clear? For any metal. Zinc also insoluble, Fe also insoluble. सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सारे सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, खाली दो ही इनसोल्यूबल है, बाइकार्ब, सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्ब। नाउ अभी तुमने देखा बेटा, लेड का क्या क्या इनसोल्यूबल था? लेड का क्लोराइड भी इनसोल्यूबल है, बोलो ना। सल्फेट भी इनसोल्यूबल है। देन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बन, एवरीथिंग इज इनसोल्यूबल। अच्छा बेटा, there is only one salt whose exception, one category where there we don't have exception, that is all nitrate are soluble. No exception, no exception. So lead का only soluble salt in your syllabus is lead nitrate. Understood? Now you'll say, sir, where all this thing is given? So look here, I'll show you in my notes also. Look beta, this is my last page. I told you, before doing this chapter, you should always do which page? Last page. In last page, beta, I have given all this thing. Can you see insoluble salt? आगे होगा पक्का क्लोराइड इनसोल्यूबल। अच्छा, उसमें भी अगर पूछेंगे नेम सॉल्ट विच इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, राइट? पंजाब का बाग का सल्फेट इज इनसोल्यूबल। रेस्ट अदर मेटल का क्लोराइड एंड सल्फेट आर व्हाट? सोल्यूबल। क्लोराइड एंड सल्फेट आर व्हाट? क्लियर है? ऑल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम आर all remaining, all other metal, it will be okay. All nitrates are soluble, no exception. All nitrates are soluble, no exception, no exception. Clear? चलो, now let us go to this part. अच्छा, मैंने आपको थोड़ा और चीज बताया था। This I told you ना बेटा, this last page आपको first page बना देना, फिर उसको by add कर। Okay, tell me बेटा, copper hydroxide is which color? Fe hydroxide, ferrous is dirty green. Ferric hydroxide is lead hydroxide is, and zinc hydroxide is, ये कलर पे तो ध्यान दे बेटा एक मिनट। ठीक है, तो बेटा मैं करते हैं। Now in lab beta, precipitation में what we are going to do, initial to salt should be what? Soluble. Precipitation में initial to salt should be what? Soluble. देख बेटा, मैंने यहाँ पे ये soluble चीज लिया है, this is also soluble. Now something insoluble will be formed. It will go down or not? Tell me. दिखाई दे रहा है, ये डाउन चला गया, and उसको हम लोग क्या कहते हैं? Precipitate. आद्या बेटा, we have just started. Okay, sir. Now, in lab, beta, whenever we do experiment, we are going to add NaOH. What we are going to add? Na का कोई भी सॉल्ट लिया होता है soluble. अभी मैं एक unknown salt दूंगा. I am going to add this. Now you have to write two observation. थोड़ा डाला and excess. थोड़ा डाला and excess. चलो. So first of all, बेटा, मैंने क्या लिया? ये कंडीशन याद रखना, दोनों soluble होना चाहिए स्टार्टिंग. Then we should have insoluble. Clear? चलो. First I have written here ferrous sulfate. First we have to decide whether it is soluble or insoluble. बंद कर देना उसको, या कुछ रख दे उसको। चलो बेटा, नहीं उसमें कुछ लिखना था बेटा, यूनिवर्सिटी पहला सोचने का, फेरस सल्फेट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सल्फेट का व्हाट वाज द ट्रिक? पंजाब का बाग का सल्फेट। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? तो सॉल्युबल। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। Na रहेगा तो देखने का ही नहीं, ऑल Na सॉल्ट आर सॉल्युबल। Now in beta, what in this double decomposition partner will change. Fe valence is how much? This is 2 minus. This is 1 plus and this is 1 minus. Now what will happen? Beta, partners will change. So what you are going to get? Tell me. both you. अच्छा, now ये FeOH2 मिला, दिखाई दे रहा है? Is this a hydroxide of sodium, potassium, ammonium? तो insoluble हुआ है। अब समझा? फिर इसके आगे डाउन बढ़े। Now what will happen? Na और ये सल्फेट का क्या वैलेंसी बन जाएगा? Na is 1 plus. Sulfate is 2 minus. So what you will get? Oh my God.
Na2SO4 बेटा, सोडियम सॉल्ट सोल्यूबल। तो देखिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, नहीं देख बेटा ये वाले, ये मैंने थोड़ा जब एनोएट डाला। अच्छा, बट अगर मैं एक्सेस डालूंगा तो आई हैव रिटन ऑब्जर्वेशन, इफ आई ऐड एक्सेस देन व्हाट यू हैव टू राइट, insoluble in excess of NaOH. Write your observation when NaOH is added to ferrous sulfate. When NaOH is added to, so what you'll write, beta? You get dirty green PPT insoluble in excess of NaOH. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैंने आपको एक अननोन सॉल्ट दिया था, उसके अंदर आपने NaOH डाला और आपको डर्टी ग्रीन पीपीटी मिला। सो विच कटायन, ये सब कटायन, इस पे ये हेडिंग खाली लिख दिया था कटायन। तो अगर डर्टी ग्रीन पीपीटी मिलेगा तो विच कटायन, समझ में आया? इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज एडेड टू NaOH. व्हाट यू राइट, डर्टी ग्रीन पीपीटी insoluble in excess. Hey, I have given you an unknown salt. In that you added NaOH. You got dirty green PPT. Which cation? Very good. समझा? चलो, आराध्या बेटा, हेलो। हाँ सर। अच्छा, अभी मेरे को बता, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फेरिक क्लोराइड। पहले तू डिसाइड करेगी वेदर इट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। क्लोराइड में क्या ट्रिक पड़ा था, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल। एक्सेप्ट आगे होगा पब। क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है? नहीं। नहीं ना बेटा, तो ये क्या है बोलो? सॉल्युबल। Na का कोई भी सॉल्ट होता है तो सॉल्यूबल। देखिए हो गया कि नहीं? अच्छा, अभी Fe का इसमें क्या चार्ज है बोलो बेटा? Fe इज हाउ मच बेटा? +3। 3+। OH इज 1-, सो एक्सचेंज होगा तो क्या बन जाएगा? Fe। NaOH थ्राइस। बट टेल मी, हाइड्रोक्साइड इज ऑफ ओनली सोडियम पोटेशियम अमोनियम इज सोल्यूबल। क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम का हाइड्रोक्साइड है? नो ना, सो इनसोल्यूबल। अब समझ में आया? अच्छा, दूसरा सॉल्ट क्या बना, Na और CS। सोडियम का कोई भी सॉल्ट सोल्यूबल होता है। देख सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए कि नहीं? आर ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट, टेल मी? यस। So in exam, beta, I will ask you two questions. Write your observation when NaOH is added to Fe3+. So what you will write, beta? Reddish brown PPT in Insoluble. You are given an unknown salt, in that you are adding NaOH. Which cation? 3+। Clear? आद्या बेटा, आवाज आ रही है? जानी। हाँ सर आ रही है। अभी देख बेटा, मैंने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट। बेटा सल्फेट में कौन सल्फेट इंसॉल्युबल होते थे? पंजाब का बाग का सल्फेट। क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नो सर। हाँ, तो ये सोल्यूबल है बेटा। देखिए सोल्यूबल होना चाहिए कि नहीं? NaOH भी क्या है, सोल्यूबल। सॉल्युबल। पार्टनर अभी चेंज होगा, कॉपर 2+ है, OH 1- है, तो क्रिस क्रॉस होगा तो COH2 मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर। NaN सल्फेट का वैलेंसी, Na वैलेंस इज हाउ मच बेटा? 1+, सल्फेट इज हाउ मच बेटा? 2-, so if you do criss cross, so you get sodium soluble or not, tell me? यस सर। Okay, so what you will have to remember here, write your observation when NaOH is added to copper sulfate. So you have to write what? Pale blue. Pale blue precipitate is formed. Insoluble in excess. Insoluble in excess. You are given an unknown salt, you are adding NaOH to it. Which cation is, if you get pale blue PPT, so which cation? बोलो, Cu2+. Cu2 plus. अच्छा, अभी हम लोग है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH की पढ़ते हैं। NaOH में सिर्फ दो लोग ही सॉल्युबल है। NaOH में कौन सॉल्युबल है? जिंक एंड Pb। जिंक है। चलो बेटा, अभी मुझे बताओ, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया है, जिंक सल्फेट। पहले बता बेटा मुझे, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? तो सोल्यूबल है, ये भी सोल्यूबल है। दोनों चेंज हो गया तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जिलेटिन इज बाई PPT, और बट क्या है बोल? ठीक है। चलो अभी मेरे को बताइए, लेड नाइट्रेट है। लेड के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं। लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है पूरे सिलेबस में, 9th और 10th में, लेड नाइट्रेट। देखिए सॉल्युबल है कि नहीं बोल? बेनोएट डालेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चौकी वाई PPT। अभी एग्जाम में बेटा आपको क्या क्या क्वेश्चन आए, यहाँ पे मैं ऐसा कटायंस लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? और है ना, ये सब कलर दूंगा एक साइड, मैं द कॉलम में ये सब कलर दूंगा, और यहाँ पे ऐसे ये कटायन दूंगा, और मैं ना ये ऑर्डर चेंज कर दूंगा। एंड आई टेल यू टू डू व्हाट, मैथ द कॉलम। व्हाट आई टेल यू टू डू, मैथ द कॉलम। क्लियर? विल यू बी एबल टू डू इट? भी आप बोलोगे सर ये सब क्वेश्चन कहाँ है, तो आज बेटा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक 1 पेज दिया है सबको। तुम लोग को भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैंने इसको दिया अथर्व को, अथर्व से ले लेना आप लोग। चलो बेटा इधर पे आ जाओ।
I hope all of you can see this. आराध्या बेटा देख पहला क्वेश्चन देख, तेरे को पेज दिया ना बेटा, उसमें ये हाँ तू देख सकता है, खाली यहाँ पे देखना, फेरस सल्फेट विद ट्रीटेड विद NOH, तो क्या मिला था, बोल आंसर। डर्टी ग्रीन PPT। Dirty green PPT insoluble in excess. फेरिक क्लोराइड विद NOH, रेडिश ब्राउन PPT। Insoluble. फिर बाद में हम लोगों ने कॉपर किया था, कॉपर सल्फेट विद NOH, पेल ब्लू PPT, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल सिर्फ दो ही होता था, जिंक एंड PB। व्हाट बेटा? Zinc and PD. तो जिंक देख, जिलेटिनस व्हाइट PPT देख, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है सॉल्युबल इन एक्सेस, ये लिखने का इन एक्सेस वाला ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ पर आ जाओ बेटा, जिंक हो गया, फिर क्या बाकी दिया था अपना, लेड, लेड नाइट्रेट दिखाई दे रहा है, चौकी व्हाइट PPT, सॉल्युबल इन एक्सेस, मिला के नहीं बोलो, क्लियर है? ये था प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेटा डेफिनेशन अगर आएगा पूछेगा तो क्या होगा उसमें, बोलो। टू सोल्यूबल सॉल्ट विल अंडरगो रिएक्शन टू गिव यू इनसोल्यूबल एंड। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ते बेटा, ये किसके अंदर आता है, डबल डीकम्पोजिशन। फिर बेटा हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में देखो मैंने क्या लिखा है, ये अल्कली क्या कि मैंने वाटर सोल्यूबल क्यों लिखा था बेटा, व्हाट आर अल्कली, दे आर एनी कंपाउंड व्हिच हैज OH बट दे आर वाटर सोल्यूबल। और ये क्या रहता है, वाटर। अच्छा, वाटर सोल्यूबल में कौन थे, लीना के एंड अमोनियम। एंड एक वीक अल्कली कौन सा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एनीवेज, ए इन न्यूट्रलाइजेशन इफ आई टेक एसिड एंड अल्कली, तो देख यहाँ पे लिया है, एंड एसिड एंड बेस वाला कहाँ पे लिया है, यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे लेकिन ट्रिक क्या है, विच सॉल्ट यू गेट, सोल्यूबल एंड वाटर नहीं होता, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा, प्रेसिपिटेशन में दोनों सॉल्ट मिलता है। तो देख बेटा, ये वाटर वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, अल्कली सॉल्ट एंड वाटर, अल्कली सॉल्ट एंड वाटर, अल्कली सॉल्ट एंड, क्लियर है? ये एक्सेप्शन है बेटा, ये एच में एक्सेप्शन होता है, क्यों पता है क्या, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल, पंजाब का बाप था, ये इनसोल्यूबल है, फिर वहां पे लिख दे इनसोल्यूबल। कैल्शियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल, ओके। अच्छा, ये बेस है, पहला मेरे को बता, ये सब देखो क्या, ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है क्या, इसलिए सबके नीचे इनसोल्यूबल लिखा, अब समझा? बहुत मजेदार है ये, देखना। देखिए इसके साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, इजी था। देखिए कॉपर विल गो टू सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज सोल्यूबल और नॉट, क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है, क्या ये आगे होगा पप का क्लोराइड है। अभी लेड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने लिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है, क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। ए ऑल नाइट्रेट आर सोल्यूबल, नो एक्सेप्शन। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे HCl क्यों नहीं लिया, अगर मैं HCl लेता तो क्या होता था बता, मुझे क्या मिलता, आगे होगा पप का क्लोराइड इनसोल्यूबल है कि नहीं, तो यहाँ पे अपने को सोल्यूबल होना चाहिए, तो ये चलेगा क्या, तो मैं HCl नहीं ले सकता। सपोज अगर मैंने H2SO4 लिया रहता तो लेड के साथ पंजाब का बाग का सल्फेट मिलेगा कि नहीं, बोलो, वो भी इनसोल्यूबल है कि नहीं, लेकिन अपने को सोल्यूबल चाहिए तो ये मैं नहीं ले सकता, इसलिए बेटा यहाँ पे मैंने देखो नीचे ऐसा मुंडी बनाया है, इंपॉर्टेंट। क्या मुंडी बनाया है देखो नीचे, ये इंपॉर्टेंट, फॉर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ लेड वी कैन टेक ओनली फॉर नाइट्रिक एसिड ओनली। अब समझा बेटा, देखो मैंने हर एक चीज बताया, लिंक क्यू नाइट्रिक एसिड, ओके, राइट। अच्छा अभी बेटा अगर आप देखोगे ना तो ये आपका टेक्स्ट बुक है बेटा, टेक्स्ट बुक में मैं कुछ बता रहा हूँ। हम्म, ये टेक्स्ट बुक दिख रही है सबको? अभी बेटा यहाँ पे देखो बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडो। एक्सो मीन्स रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट इज नोन एज, एंडो में क्या होगा, क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है देख, अमोनिया, पता है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, एक्सोथर्मिक था कि नहीं, हम लोग ने किया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे बेटा प्लेटिनम भी होता है और 800 डिग्री भी होता है, वो मैंने लिख के दिया हुआ। एंडोथर्मिक में बेटा ये तो हम लोग ने किया, नाइट्रोजन में ये 3000 डिग्री होता है। तुमको पता है ये वाला रिएक्शन आपने कहाँ पे किया था, 8 स्टैंडर्ड में, हाइड्रो वो ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा। और ये कौन सा था बेटा, ये CO और H2 को क्या कहते थे पता है, वाटर गैस, याद आ रहा है कि नहीं, बॉस प्रोसेस।
1000 डिग्री लिखते थे। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मैं तुमको एक चीज बताता, देखो मैंने आज आपको एक पेज दिया इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? देख बेटा, ये इंपॉर्टेंट पेज आज मैंने दिया है, तुम लोग ने आए नहीं, तुम लोग सब एब्सेंट थे। ये देख, अच्छा आप देखोगे कभी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड लेना है तो मैं हमेशा क्या लूंगा, लेड नाइट्रेट ही। क्लियर है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, एक्सोथर्मिक एंड, देखो बेटा यहाँ पे प्लेटिनम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 40। अच्छा इसको क्या कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विल गिव यू विच गैस? एनओ। एनओ को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? चलो बेटा, ये अमोनिया 200 एटमॉस, देखिए प्रेशर लिया ना तो इसको प्रेशर वाला भी कहते हैं। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, एब्जॉर्प्शन, देख नाइट्रोजन प्लस। अच्छा मैं यहाँ पे भी लिख सकता या ऐसा माइनस ट्राइंगल भी लिख सकता, यहाँ पे मैं माइनस ट्राइंगल, और यहाँ पे ना क्या होता था, 1000 डिग्री, ये मिसिंग है बेटा, 1000। और ये दोनों को क्या कहते थे, वाटर गैस। लिख ले बेटा, वहां पे वन पेज दिया ना तेरे को, एक वन पेज दिया है मैंने, तुम लोग का सबका पेज है ना, इसको दिया अथर्व से ले लेना, जिसमें ये पूरा दिया है। रिया क्यों नहीं आई रे, आद्या? सर वो ट्रैवल कर रही है। तो तुम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तुम लोग लास्ट टाइम बताना चाहिए था मुझे। सर मैंने बताया था मैं ट्रैवल कर रही थी। तेरा पता है, ये लोग का सबका कुछ पता। और वो दोनों जुड़वा? वो दोनों भी ट्रैवल कर रहे हैं। ओहो, तो तुम लोग कभी फिर मतलब तो भी कब, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे टेस्ट लेना है इसका बेटा, फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है। सर नेक्स्ट क्लास में हूँ। हाँ मैं हूँ, नेक्स्ट क्लास लोगे ना आप टेस्ट? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास ही लेना है, तो ये सब बच्चे होने चाहिए ना तो भाई। तब तक वो आ जाएंगे ना? अच्छा, आई थिंक सो। बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ जून में यू हैव टेस्ट इन स्कूल, 8 से स्टार्ट हाँ। हो रहा है ना तुम्हारा। तो वी विल नॉट टेक ना, आई वांट टू चेक, वी विल गेट, नहीं नहीं आएगा, संडे भी आएगा, डायरेक्ट 7th आएगा जून। क्या है देखते हम्म। हैं। हाँ 7th आएगा, 8 से टेस्ट है ना आप लोगों का। नहीं 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 नहीं, हम लोग है ना नेक्स्ट वीक ही कर देते बेटा, 17। हाँ वैसे भी 17 अपना लास्ट है, फिर छुट्टी है 2 दिन, 12 की टेस्ट। चल बेटा, ये हो गया सर, बेटा। हाँ सर एक ही चैप्टर आ रहा है ना, हाँ, लैंग्वेज ऑफ बस केमिस्ट्री। नहीं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्यों, तुम्हारे स्कूल में केमिकल रिएक्शन भी है ना। हाँ। केमिकल रिएक्शन हमारे स्कूल में खत्म नहीं हुआ है। नहीं लेकिन वो रखेंगे वो लोग एकदम। मेरा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट हो गया, आई की टेस्ट ऑन केमिकल रिएक्शन, ये जो आपको बता रहा केमिकल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है ना? ये इतना हो गया अच्छे से। अच्छा बेटा, कभी कभी उन्हें वो लोग आपको ये पूछेंगे, व्हाट आर द 6 ways in which the, अच्छा ये खाली याद रखना, ये कौन सा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज फोटोकेमिकल। यार ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कर चुके बेटा लास्ट क्लास, ये करवाया था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। अच्छा अभी ये पूछेंगे, व्हाट आर द 6 ways in which the reaction can take place? फर्स्ट इज विच वन? हीट। हीट वाला हम लोग किए कि नहीं, इन्हीं थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको रेड लेड बोलते हैं, और ये क्या बनता है बेटा, लिथाज, येलो पीपीट, बफ येलो। लाइट वाला फोटो लाइटिक, ये किया था कि नहीं? फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला भी किया था कि नहीं, बोलो? एसिडिफाइड वाटर। अच्छा अभी ये प्रेशर वाला बोलोगे सर ये कहाँ से, जो प्रेशर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अमोनिया किया था ना, अमोनिया में देखिए प्रेशर यूज करते हैं कि नहीं? कैटलिस्ट वाला भी बताया था बेटा, ये 45 46। फिर ये देखो, ये नया है बेटा, साउंड वाला, ये बेटा हाइड्रोकार्बन है, एसिटिलीन इज द हाइड्रोकार्बन व्हेन यू पास फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी, इट विल डिकम्पोज टू गिव यू कार्बन एंड हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? अब बेटा आपको ना मैं क्विकली बता देता, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख, कोई भी मेटल कार्बोनेट लेके बेटा, व्हाट बेटा, इफ यू टेक मेटल, मेटल कार्बोनेट, देख बेटा, इफ आई टेक मेटल कार्बोनेट विद एसिड विच गैस, CO2, मेटल बाय सल्फेट और सल्फाइड विच गैस, मेटल सल्फाइड। बेटा आइड लिखा रहता है ना, देख मैं तुमको मैंने बता दिया था, पहला कंफ्यूजन। ये 3 चीज कैसे याद रखेगा, आइड, आइट एंड एट। इसमें क्या रहता है, नो ऑक्सीजन, नो,
इसमें लेस ऑक्सीजन और इसमें क्या होता है, मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। अभी मैं बताऊँ क्या है, देखो ऐसा एग्जाम्पल। अभी मैं तुमको लिया, क्या लिया था तुम्हारा बेटा, नाइट्राइड, नाइट्राइड। फिर ये क्या होगा बोलो बेटा, नाइट्राइट। और ये क्या हो गया, नाइट्रेट। सल्फाइड, सल्फाइट, सल फॉस्फाइड, फॉस्फाइट, फॉस्फेट। आइड में नो ऑक्सीजन, इतना याद रहेगा। अच्छा चलो, अभी बेटा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अमोनियम सॉल्ट, ये मैंने लिखवाया था आपको, दिस इज व्हाट माय अमोनियम सॉल्ट, याद आ रहा है कि नहीं। अमोनियम क्लोराइड इज अमोनियम सॉल्ट और नॉट, टेल मी। अच्छा, इसको क्या कहते थे, अल्कली, वीक अल्कली। व्हेन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली व्हिच गैस इज रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा, कभी भी एक्टिव मेटल अगर मैं लूंगा, विच मेटल, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन होते थे हमारे बेटा, अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना तो याद रखना। मंगल, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मंगल जिंदाबाद फीलिंग। इनको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो विच गैस विल बी रिलीज, हाइड्रोजन। अभी आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन सब कहाँ है, तो बेटा आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 पेज नोट्स दिया है, मतलब इसको अथर्व के पास है, सब लोग ले लेना। लुक हियर बेटा, ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स। चलो बेटा वन बाय वन। आराध्या बेटा, कैन यू सी दिस, हेलो। Yes, sir. What is my identify the gas evolved? Gas evolved when ammonium salt is treated with alkali. What is the gas? NH3. Gas evolved when metal carbonate with acid. CO2. Gas evolved sulfide, yeah? Ite, sulfide ऐसा होता है। So which gas? SO2. Mangal जिंदाबाद feeling, active metal with dilute acid. So which gas? H2. Catalytic oxidation of ammonia. Which gas? NO. फिर मेटल सल्फाइड, आइड, नो ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, विच गैस, बोलो। हाइड्रोजन सल्फाइड, अरे बोलना बेटा। हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S. हाँ, रूटन एक्स में। अब समझा सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, बोलो। Yes, sir. आज मैं सब आपको क्वेश्चन ही डिस्कस करवा रहा हूँ। इधर आया, ये हो गया बेटा, अच्छे से आ गया। अभी देखो बेटा, मैं तुमको बता देता क्विकली, फटाफट बाकी के क्वेश्चन भी कवर कर दे। देख बेटा, कॉम्बिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा, वो लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगे। तू मेरे को बता भी, ये व्हेन बोथ आर एलिमेंट देन इट इज सिंथेसिस। अच्छा, ये सल्फाइड ऐसा, ऑल सल्फाइड आर व्हाट, इनसॉल्युबल। खाली किसका सोल्यूबल होता है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। तो अगर मैंने एग्जाम में बोला राइट एन इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ Fe बाय सिंथेसिस, सो व्हाट विल डू, Fe प्लस S, या येलो नॉन मेटल, बराबर है। देन बेटा, इफ आई आस्क यू इन एग्जाम, write a combination reaction in which what is formed, beta, weak acids. Out of these three, anything you can write. Write a combination reaction in which strong alkali is formed. Write a combination reaction in which weak alkali is formed. Clear? तो आप बोलोगे सर ये, अच्छा फिर राइट है, तो आप बोलोगे सर इसके क्वेश्चन आंसर्स कहाँ है। तो देखो आज मैंने एक 1 पेज नोट्स दिया है सबको। ये देख बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखा ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ Fe बाय सिंथेसिस, देख आया कि नहीं, राइट। फिर ये देख बेटा, combination of two compounds to form weak acid, either this reaction or this. Strong acid, so SO3 plus water. Weak alkali, combination reaction क्या है, strong alkali, so anyway, are you getting। फिर यहाँ पर आ जा, a combination reaction of a Fe with greenish yellow gas or colored gas, greenish yellow gas और, ये देख बेटा, ग्रीनिश येलो गैस और कलर गैस। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे मैंने सोल्यूबल क्यों लिखा है पता चलते हैं। ये सब क्या है, दोनों क्लोराइड है। क्लोराइड किसका इनसोल्यूबल होता था, आगे होगा पब, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है, क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है। Fe प्लस क्लोरीन होगा तो FeCl3 बनता है, FeCl2 नहीं बनेगा। अच्छा, इन सब के आगे अभी मैंने इनसोल्यूबल क्यों लिखा, चल बता मेरे को।
सल्फाइड और सल्फाइड। हाँ, सल्फाइड, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सल्फाइड नहीं, इसलिए इनसोल्यूबल। अब समझा अच्छे से, राइट? ये बेटा इधर पे आ जाते हैं। या राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन of two neutral gas to give you neutral liquid. Combination of two gas to give you basic gas. क्लियर है? तभी आप बोलोगे सर ये सब क्वेश्चन किधर है? आज मैंने आपको एक 1 पेज नोट्स दिया। देख, क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इन दिस चैप्टर। देख रहे हैं, ट्राइवेलेंट मेटल विद कलर्ड गैस, देखा? ये देख, कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूट्रल गैसेस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड। क्लियर? फिर इधर पे आ जा। राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच बेसिक गैस इज फॉर्म। दिखाई दे रहा है ये अमोनिया वाला? बोलो ना। डिस्प्लेसमेंट को, Into plus. डिस्प्लेसमेंट ये डन। मैंने बता दिया था ना डिस्प्लेसमेंट का। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट के? चलो बेटा, अभी इसके क्वेश्चन आंसर में। थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था? करीना का नाइट्रेट होगा तो व्हाट इट विल गिव यू, बोलो? नाइट्राइट एंड ओके, कैल्शियम टू कॉपर, इफ एनी नाइट्रेट आई टेक आई गेट व्हाट? मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2. एंड देन नीचे का दोनों का हमेशा होगा तो व्हाट इट विल डू बेटा? बस छोटा करो। हाँ, चल जा। ये नीचे का दो हमेशा नाइट्रेट ऑफ सिल्वर एंड ये क्या देगा हमेशा, बोलो? मेटल है। Metal and O2 हाँ, and तो अभी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल, तो मर्क्यूरी एंड सिल्वर। नेम अ नाइट्रेट विच गिव ओनली ऑक्सीजन गैस, ओनली ऑक्सीजन गैस कौन देता है? करीना का नाइट्रेट। आर यू गेटिंग इट? ऐसे सब क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर हाइड्रोक्साइड का ट्रिक है बेटा। ये नेम अ हाइड्रोक्साइड विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, KOH एंड NaOH। फिर बेटा इसका हाइड्रोक्साइड लेगा तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम कैल्शियम टू कॉपर? यू विल गेट मेटल ऑक्साइड एंड व्हाट? नेम ऑफ हाइड्रोक्साइड विच गिव इट्स ओन मेटल। ओन मेटल कौन दे रहा है, बोलो बेटा? ये सिल्वर। क्या याद रखना? हाइड्रोक्साइड विल गिव यू व्हाट? बोलो? मेटल। हाँ, मेटल प्लस वाटर एंड, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नेम हाइड्रोक्साइड विच गिव इट्स ओन मेटल, तो मर्क्यूरी एंड सिल्वर। कार्बोनेट का क्या ट्रिक किया था, बोलो बेटा? whose carbonate does not decompose? ये बेटा, करीना का कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज। कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कार्बोनेट लेके तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड एंड। अभी आपको पूछा हो, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक कार्बोनेट इज इट, यू गेट अ रेसिड्यू व्हिच इज येलो व्हेन हॉट। राइट अ रिएक्शन इन व्हिच ग्रीन कंपाउंड गिव्स यू ब्लैक रेसिड्यू, तो ये कॉपर। राइट योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ग्रीन कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू। नेम अ कार्बोनेट व्हिच गिव इट्स ओन मेटल, मर्क्यूरी एंड, नीचे वाला हमेशा विल गिव यू ओन मेटल। ऑक्साइड भी मिनिमम मेटल ऑक्साइड विच गिव इट्स ओन मेटल, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड। ये हम लोग ने किया था फोटोकेमिकल, व्हाई सिल्वर सॉल्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल। if you kept in transparent bottle it will absorb sunlight and undergo photochemical decompose. ये जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक आएगा तो एसिडिफाइड लिखना और एरो लिखना और कैथोड एनोड मेंशन कर। क्लियर है? देन बेटा वी डिड व्हाट Sir, बेटा? हाँ बोलो। इधर इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे मैं EC लिख दूं तो चलेगा? इसी नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। एग्जामिनर तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं है। फिर बेटा आपको मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन पे ऐसा 10 तरह के क्वेश्चन मैं पूछूंगा। राइट योर ऑब्जर्व, इस पे 10 टाइप का मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि नहीं? राइट, अच्छा पहला, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, ब्लू कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू बफ येलो रेसिड्यू, बफ येलो एंड रेडिश ब्राउन गैस। अच्छा, नेम द गैस रिलीज व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, अमोनियम डाइक्रोमेट को गैस कौन सा रिलीज हुआ? नाइट्रोजन। Write your observation when ammonium dichromate is heated. Orange color compound decomposes violently with flashes of light to give you. Write your observation when hydrated copper sulfate is heated. Hydrated copper sulfate या blue vitriol. White crystalline substance will give you white anhydrous amorphous powder. लेकिन बेटा अगर कभी पूछा, name the gas released when anhydrous copper gas released. anhydrous copper sulfate होगा तो SO2 and
विच गैस इज रिलीज? SO2 है। समझ में आ रहा है? ये देख बेटा, राइट योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग कार्बन अच्छा। ए नेम द गैस रिलीज व्हेन सप्लीमेंट्री सब्सटेंस और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। अमोनिया एंड HCl। अभी देखो बेटा, मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तेरे से। इधर आ जाओ। टेन टेन, कम ऑन। गैस इवॉल्व व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। अमोनियम डाइक्रोमेट में क्या था बोलो? अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो विच गैस? HCl। एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो? दिखाई दे रहा है ना आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट दिखाई दे रहा है ना? मेटल नाइट्रेट विच गिव्स ओनली ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। करीना का नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल ऑन हीटिंग। बोलो। सिल्वर एंड मर्क्यूरी। मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड वी डू नॉट डिकम्पोज। तो करीना का कार्बोनेट एंड करीना का हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज। देखा ना, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं? बोलो। डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ऐसे बेटा क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना ऑब्जर्वेशन। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन lead nitrate is heated. White color compound decomposes. Whenever they ask observation, you will write only the visible change. It will give you buff yellow residue and reddish brown gas. Copper nitrate is heated. Blue color compound decomposes to give you black residue, and which gas is evolved? Zinc carbonate को हीट करेगा तो you get a residue which is yellow when hot, white when cold and reddish brown. NO2 का कलर क्या था? रेडिश ब्राउन। कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड, अभी बताया था ना, ग्रीन कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेस्ट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, विल गिव यू व्हाइट एनाइड्रस अमॉर्फस पाउडर। फिर देखो बेटा, हो गया ना बेटा हीटिंग वाला पूरा पार्ट? आया का नहीं सारे क्वेश्चन आंसर? फिर वही क्वेश्चन को मैं घुमा के भी पूछ सकता था। अगर मैं ऐसा बोलता था आपको, ग्रीन कलर कंपाउंड गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, ये देख रहा है? क्लियर है? तो ये आंसर लिख देता। फिर ऑरेंज कलर कंपाउंड गिव यू ग्रीन रेसिड्यू, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग। फिर ब्लू कलर कंपाउंड decomposes to give you black residue, कॉपर नाइट्रेट वाला रिएक्शन। व्हाइट कंपाउंड डिकम्पोजेज टू गिव यू बफ येलो, तो लेड नाइट्रेट वाला। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पूरे रिएक्शंस थे बेटा पूरा। और ये पूरा चैप्टर में हम लोग ने सब अच्छे से कर दिया है। आपको मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी बता दिया, फिर सोल्युबिलिटी टेबल भी बता दिया। ये खाली चैप्टर में आप डेफिनेशन बेटा टेक्स्ट बुक से पढ़ना। डेफिनेशन कहाँ से पढ़ोगे? ये डबल डिकम्पोजिशन और वो सब का बेटा। अच्छा, अभी आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज में बताना रहेगा बेटा। ये देखो बेटा, ये अप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा। कभी कभी अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो हम लोग बाहर से क्या पीते हैं? इनो, इनो डाइजीन जेलुसिल। तो पेट में एसिडिटी क्यों होती है? बिकॉज पेट में स्टमक में पैराइटल सेल होते हैं, दे सिक्रेट व्हाट? HCl, डाइजेस्टिव जूस। उसका सिक्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी होती है, तो वी टेक इनो। सो इनो इज नथिंग बट इट इज अ बेस। बेस होता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? तो अप्लीकेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो इनो वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड। क्या कहते हैं? बाय एंटा, बिकॉज दे एक्ट अगेंस्ट एसिड, सो एंटी एसिड दे आर व्हाट? देखने लिखा ना इन स्टमक में बेटा, एसिडिटी इन द स्टमक कैन बी रिलीव बाय टेकिंग एंटा एसिड विच इज अल्कलाइन विच न्यूट्रलाइजेस द। दूसरा बेटा, कभी हमको मधुमक्खी चींटी वगैरह काटती है तो हमको बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि वो लोग क्या सिक्रेट करते हैं वहां पे? एसिड सिक्रेट करते हैं। तो अभी जलन को रोकना है तो हम लोग क्या कराएंगे बेटा? कुछ बेस लगाने का। लेकिन अगर घर पे कुछ दवाई नहीं, तो हमारे घर पे ना खाने में हम लोग क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज व्हाट? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? हाँ, बेकिंग सोडा। हाँ बोलो, क्या हो गया? हाँ, उसमें वो कार्बोनेट्स होता है ना बेटा, इसके लिए। तो लोग व्हाट वी अप्लाई? स्टिंग ऑफ अ बी और अ वास्प इज एसिडिक इन नेचर, सो अप्लाई दिस, so it will nullify the effect of acid. Why? Because that is basic substance. Clear? आया क्या? हेलो। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बाकी ये सब मैंने तुमको पढ़ा दिया, ये सब अच्छे से मैंने बताया। देख, आज हम लोग ने ये किया था, देख रहे हैं क्या? Fe2+ क्या था बोलो बेटा? डर्टी ग्रीन PPT insoluble in excess। ये देख, Fe3+ क्या था? रेडिश ब्राउन PPT। Copper 2+ insoluble। ये दोनों तुम्हारा क्या था? देख, ये लास्ट वाला जिंक एंड PP क्या था बोलो? इन एक्सेस। ये एक्सेस वाला दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं?
फिर मैं आपको मैथ द कॉलम में मतलब कलर ऊपर नीचे करके दे दूंगा, ये दे दूंगा और ये कर पाओगे ना। फिर बेटा मैंने आप लोगों को वर्कशीट दिया था, क्या दिया था? वर्कशीट, किधर गया वर्कशीट? सर आपने नहीं दिया था। दिया है, तेरा इसके पास है, अथर्व के पास। वो आई नहीं तो मैं क्या करूं? हाँ, सॉरी सर। शट योर माउथ। सर नेक्स्ट क्लास करके लाना हाँ तो है ही नहीं मेरे पास। आज आके ले ले इसके पास से। बहुत दूर रहती है ना तू तो इससे, अथर्व से। नहीं। ये वाला वर्कशीट है बेटा, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। दोनों करके लाना है। एक ही तो वर्कशीट है, दो कहाँ से? ये पूरा करना है, इसी के अंदर करना। गिव रीजन वगैरह मत करना, ऑब्जर्वेशन वो सब कंजूसी में करना, जैसा भी मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखना बेटा, ये वाला खाली एक बता देता। ए, गैस प्रोड्यूस एन अमोनियम क्लोराइड, HCl एन अमोनिया, तो आंसर क्या होगा? किया तूने क्या? गैस फॉर्म एन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। बोलो सेम ही है ना बेटा? नहीं नहीं, ये सारा क्या था बेटा? हाँ, अमोनियम क्लोराइड तो बेटा वापिस अमोनिया। ये अमोनियम सॉल्ट था बेटा, अमोनियम क्लोराइड भी अल्कली, याद है ना, वो भी अमोनिया था। इस फॉर्म एन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, आज बताया था ना। इस फॉर्म एन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड, अमोनियम नाइट्रेट के हीट करेंगे तो कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड। मेरे बड़े वाले में रिएक्शन में है, दिखाओ क्या वो, पता है कि नहीं? हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, तो व्हाट व्हिच रिएक्शन इट इज? रिएक्शन इन विद द हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस, इवोल्यूशन वाला। अच्छा, sting of a bee, the application of sodium bicarbonate is substance is used to nullify the application of sodium bicarbonate is a न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? लेकिन बेटा जरूरी नहीं हमेशा वाटर हो, अमोनिया एंड HCl के रिएक्शन में सिर्फ सॉल्ट बनता है, समझ में आ गया? एन अमोनियम सॉल्ट विच क्या था बेटा? लिव नो रेसिड्यू, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि कोई सब गैस ही मिलता है ना। कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू मोर एक्टिव मेटल अमंग दिस थ्री, करीना ने कार मांगी मांगी मैग्नीशियम। प्रेसिपिटेट व्हेन लेड नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम, तो पंजाब का भी आगे होगा पक्का क्लोराइड। डैश गिव इट्स ओन मेटल, बोलो सिल्वर नाइट्रेट। हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इज लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन होता है? तो अब आप लोगों बेटा क्या करोगे, ये पूरा अभी खुद से करना है। मैं इसके आंसर की बाद में शेयर करूंगा पहले, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ये देखिए मैं इसमें बेटा ये टेबल मैथ द ये सब करना है, फिर मैथ द कॉलम ये मैच करना है इसके साथ, फिर बाद में ये वाला बेटा, ये मैथ द कॉलम में क्रिस क्रॉस ऐसा करना। सो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हो गया बेटा, अपना चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगा ये चैप्टर का, ठीक है? चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, जल्दी हो गया। बाय सर, थैंक यू। अरे पेपर ले लेना इससे, Bye, sir. Thank you. हाँ पेपर सर, मैं आज ही आके ले लूंगी। आज ही ले, तू भी मिताली ले, अरे मिताली क्या, आराध्या बेटा ले लेना पेपर तू भी। Sir, will you be sending recording? हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो में आज भेज रहा हूँ ना उसका, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय।